Good morning, students. In today's class, we are starting the topic management by exception. As you know, in last class, we have discussed about management by objective. What is management by objective? Management by objective means a technique in which the priority is given to the determination of objectives. After determination of objective, we have to start the management process. That means planning, organizing, directing and controlling. In this technique, we have to first decide the objective for our institute, organization and for each and every individual of organization. On this basis, we can control the activities of our subordinates and we can set a standard for them. By MBO, there are so many advantages to the organization, superiors and subordinate. It helps to guide the subordinates, it helps to motivate the subordinates. By way of MBO, a superior can easily control the activities of subordinate. In today's class, we are starting MBE. In last class, we started the MBE for basic introduction. In today's class, we will discuss in detail management by exception. Business management has become a very complex task in modern times. मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो आज के टाइम में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई है किसी भी बिजनेस को मैनेज करना. इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटर्स आर कंपेलिंग मैनेजर्स दैट दे शुड फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस. कि अगर आप बिजनेस को आज लॉन्ग रन में लेकर जाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू run your business for long run, then you have to manage its cost as well as profit. कि केवल प्रॉफिट को ही नहीं, आपको कोस्ट को भी मेंटेन करना होगा. In the absence of organized and systematic plan, the manager can be loaded with the bulk of information. कि अगर कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं है तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जिससे कि आप ओवरबर्डन होंगे. एंड द मैनेजमेंट वर्क कैन बी बियॉन्ड हिज एबिलिटी. और अगर इतना वर्क होगा, आपके पास ओवरबर्डन होंगे तो आपका काम करना पॉसिबल नहीं होगा. इवन इफ ही वर्क 4 आवर्स, चाहे आप कितने घंटे काम क्यों ना कर लो. इन दीज सर्कमस्टेंसेस द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली. तो यहाँ इस केस में MBE आपको हेल्प करती है. Because this technique of management emphasizes the need to present only the information before hire managers. कि आपको इस टेक्निक के अकॉर्डिंग केवल वो इंफॉर्मेशन, only those information which are related or which are very important should be shared to the superiors so that they are not overburdened, जिससे कि वो overburden नहीं हो, ठीक है. Which they need and their attention also need to attract specific problem. ताकि जो टाइम बचे ओवरबर्डन होने के अलावा वो उसे यूज कर सके उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या सर्कमस्टेंसेस में जहां उनकी जरूरत है. दिस टेक्निक इज अडॉप्टेड इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इक्वली. और इसे आप बिजनेस के हर एरिया में इक्वली अडॉप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन लाइक एक्सेप्शन. By management principle, the unnecessary managerial intervention in the working area of subordinate also. बेनिफिट ये है कि अगर आपको याद हो, हमने हेनरी फ्यूल का एक प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन पढ़ा था, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल a superior should promote the initiatives taken by the subordinate which helps in the motivation of employees. सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को इनिशिएटिव लेने का काम में हेल्प करेंगे, नई चीज़ों को प्रमोट करेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होता है इस चीज़ के लिए. सो लिसन केयरफुली, हम बात कर रहे हैं MBE के थ्रू कि जब हम केवल रिलेटेड कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस जहाँ काम पूरा नहीं हो रहा उसे ही दे रहे हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जहाँ कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जो अनरीजनेबल इंटरवेंशन होता है टॉप लेवल मैनेजर्स का या मिडिल लेवल मैनेजर्स का, तो वो रुक जाएगा. आप अपने लेवल पर काम करेंगे, जिससे कि बेनिफिट ये होगा कि आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और आप लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है.
The system emphasizes the need to focus on complex, important, necessary, creative matter by removing attention from unnecessary and secondary importance. कि ज़रूरी नहीं है कि सारा काम ही हायर ऑथोरिटीज़ देखे, सुपीरियर्स देखे. जो रूटीन वर्क है उसके लिए सबॉर्डिनेट्स को भी ऑथोरिटी दी जा सकती है. सिंपल सी बातें हैं, ठीक है. तो आपका जो अननेसेसरी अटेंशन है सेकेंडरी वर्क के लिए आप इसे MBE के थ्रू खत्म कर सकते हैं. MBE इज द टेक्निक, नाउ डेफिनेशन, which states the attention of the higher managers should not be attracted in all those tasks and matters which are regularly given the result the prescribed outcomes. कि आपको उन एरियाज में अटेंशन नहीं देना है, अपना ध्यान नहीं देना है जिनके प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव हो रहे हैं. Those tasks should be done by the subordinate managers only. कि ये जो टास्क है ये सबॉर्डिनेट मैनेजर्स अपने आप कर लेंगे. द अटेंशन ऑफ हायर ऑफिशियल शुड ओनली बी अट्रैक्टेड टू द सर्कमस्टेंसेस एंड मैटर विच आर अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सेप्शन. कि कभी कभी एक्सेप्शनल केस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आउटकम्स प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है, नाउ द हायर ऑफिशियल कैन इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ द सबॉर्डिनेट. इज इट क्लियर? कि अब अगर रिजल्ट नहीं अचीव हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हायर ऑफिशियल ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे. अकॉर्डिंग टू लेस्टर आर बिटेलेल, MBE इज द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन दैट गिव्स अ सिग्नल टू द मैनेजर्स एट द टाइम व्हेन हिज अटेंशन इज नीडेड. कि आपको सिग्नल तभी दिया जाएगा, आपका अटेंशन तभी लिया जाएगा जब जरूरत होगी, अदरवाइज आपको परेशान नहीं किया जाएगा MBE टेक्निक में. On the contrary, this system remain calm till that time that the management attention is not necessary. ठीक है. बेसिकली इसमें यही बातें की गई हैं सब स्कॉलर्स के. अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू रेमंड मैकलॉड, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स स्टार डेफिनेशन, देयर आर सम डेफिनेशंस गिवन बाय ऑथर्स. कुछ ऑथर्स के डेफिनेशंस गिवन है जो एज इट इज मैनर में आपको लर्न करनी. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ MBE. That simply means if you adopt MBE, then what are the advantages and what is the importance or role of MBE in an organization? The history of application of this technique is quite old. इस टेक्निक का जो हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत पुराना है. But this its application in the field of business was identified at the end of 19th century. कि 19th century जब खत्म हो रही थी तब इसको आइडेंटिफाई किया गया. The credit for the identification of the application is given to the father of scientific management, Taylor. और इस टेक्निक के जो फादर हैं उन्हें FW टेलर माना गया. Taylor and other leading people of scientific management has considered this technique as useful for effective management and prevention of excessive management. टेलर के साथ और भी जो लीडिंग मैनेजर थिंकर्स थे उनको भी इसमें शामिल किया गया और इन्होंने इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए इस टेक्निक को सबसे अच्छा माना, क्योंकि एक्सेसिव मैनेजमेंट के जो वर्क होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है. इन एसेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स यूजिंग रिसीव्ड फ्रॉम. कुछ बेनिफिट्स की हम बात कर लेते हैं. लाइक द पर्सनल टाइम ऑफ मैनेजर सेव्स. सिंपल सी बात है, अगर आपके पास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही आएगी, कुछ जहां आपको बेसिकली काम करना है जो आपके वर्क से रिलेटेड है या कुछ ज़रूरत है तो ही आपके पास आएगी, तो क्या होगा, आपका जो टाइम है मैनेजर्स का उसे बचाया जा सकता है. सेकंड, एग्जीक्यूटिव एफर्ट्स कैन बी फोकस्ड ऑन द डिजायर्ड टाइम एंड प्लेस. अब क्योंकि टाइम बचेगा तो आप जहां टाइम की ज़रूरत है, जहां रिक्वायरमेंट है, वहां पर अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं जिस जगह और जिस प्लेस पर ज़रूरत है. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड केसेस कैन नॉट एस्केप द अटेंशन ऑफ द हाई ऑफिशियल्स. क्योंकि अब आपके पास टाइम है तो आप जो मैटर सॉर्ट आउट करने हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन मैटर्स और प्रॉब्लम्स को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है, और उन पर आराम से ध्यान देकर उन्हें अच्छे से क्लियर करेंगे. इट इज़ ईजी टू प्रोवाइड ब्रॉड कवरेज टू द मैनेजरियल सेक्टर. ठीक है, नाउ अब हम एक क्लास का एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, कि अगर सपोज
कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मेरा जो ध्यान वहाँ बचेगा उसकी जगह मैं बाकी क्लास को कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब मेरा मैनेजमेंट करने का एरिया ब्रॉड हो जाएगा। देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं हर एक चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, खुद से डिसीजन ले रहा हूँ, तो मेरा टाइम यूज होगा ही होगा। बट इन केस कि अगर मैं अपना कुछ एरिया छोड़ दूं, क्यों? क्योंकि रिजल्ट अचीव हो रहे हैं, तो मेरा जो टाइम बचेगा मैं उसे और दूसरे एरिया पर लगा सकता हूं, मतलब मेरा एरिया जो है वो ब्रॉड हो जाएगा मैनेजमेंट का। डिसीजन मेकिंग फ्रीक्वेंटली कैन बी रिड्यूस। अगर सारे डिसीजन एक अकेला इंसान ले रहा है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई हम बात करें अगर आप MBA को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके पास ओवरबर्डन हो जाएगा डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि अब हर तरह के वर्क के लिए डिसीजन आपको ही होल सोल लेने होंगे। द फुल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन हिस्ट्री एंड ट्रेंड इज पॉसिबल। अगर हम बात करें तो फुल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है तो आप जितने भी एफर्ट्स होंगे, ठीक है, हिस्ट्री एंड ट्रेंड इज पॉसिबल, कि आप पुराने हिस्ट्री को और आज के ट्रेंड को जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। पीपल विथ मोर क्वालिफाइड एंड हाई सैलरीज कैन बी एम्प्लॉयड ऑन हायर एफिलियंस। जिन लोगों को आपने हायर पोस्ट के लिए रखा है, हाई ऑफिशियल्स हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, तो आप उनसे अगर रूटीन वर्क करवाएंगे तो उनकी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप MBA को अडॉप्ट करते हैं देन यू कैन फुल्ली यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ हाई ऑफिशियल्स। रीजन दे कैन गिव प्रॉपर टाइम टू द देयर स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ठीक है। क्राइसिस एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम कैन बी नोन क्विकली, क्योंकि आपके पास टाइम बच रहा है, आपने अपने लेवल पर काम करने के लिए दे रखा है, तो अब कोई क्राइसिस आ जाती है तो यू कैन इजीली फाइंड इट एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट। मैनेजमेंट कैन बी कॉशियस अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड डिफिकल्टीज। नाउ जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम से आए, अपॉर्चुनिटीज भी इजीली आपको फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया सेट फॉर इवैल्यूएशन एंड सर्कमस्टेंसेस एंड इंडिविजुअल। नाउ किस बेस पर पता लगाएंगे काम हो रहा है नहीं हो रहा? क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव, दोनों चीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी मीन्स इतने टाइम तक इतनी क्वांटिटी में हो जाना चाहिए, अगर इतने होंगे दैट मीन्स गोल अचीव हो रहे हैं, हम ध्यान नहीं देंगे। क्वालिटी भी बात आ जाती है, क्योंकि क्वालिटी कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, आपकी गुडविल के लिए बहुत जरूरी होती है। इट इज ईजी टू एक्सपीरियंस लेस और लेस एक्सपीरियंस मैनेजर टू कंप्लीट न्यू टास्क विदाउट ट्रेनिंग, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस तरह से मैनेजर्स को कुछ नया करने को मिलेगा, एक्सपीरियंस लेस जो होंगे उन्हें भी आगे आने को मौका मिलेगा, ठीक है। बिना ट्रेनिंग के आप उनसे काम करवा सकते हैं। नाउ एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड एनकरेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस सिस्टम के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना ज़रूरी है। जितना कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका वर्क भी होगा। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस। फर्स्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन एनहांसेस पर्सनल व्यूज ऑफ द इंडिविजुअल्स। आपको अपने लेवल पर काम करने के लिए दे दिया तो लोगों के पर्सनल व्यू के हिसाब से काम होना स्टार्ट हो जाता है। लोग अपने पर्सनल व्यूज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट इज ऑफन बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल सिंक्रोनाइजेशन। ध्यान से समझना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होने के वजह से ही आप समझ सकते हो कि काम हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि आपको टारगेट दिया 200 यूनिट्स का, ठीक है, मान लिया हमने इस चीज़ को आपने पूरा कर लिया, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है जब तक हमें पता नहीं चलेगी मार्केट से या दूसरे डिपार्टमेंट से, तब तक आप नहीं पता लगा सकते कि वो टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए। इज इट क्लियर? सो इनक्रेडिबल सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर सिंक्रोनाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपकी ये टेक्निक अच्छी नहीं होगी। इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब सिंपल सी बात है, मैं आपका इवेल्युएशन कर रहा हूँ। लाइक कोई स्टूडेंट है मेरे मिस्टर राम, जिसे मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ कि अच्छा है या नहीं, या मेरे अंडर में कोई एम्प्लॉई अच्छा है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं कर रहा, किस तरह से उसको MBA अप्लाई किया जाए नहीं किया जाए, तो उसके लिए मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बेस पर मैं फाइनल डिसीजन ले पाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे एनालिसिस करने के लिए टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए भी अच्छी प्रोसेस नहीं है। हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं। इट इंक्रीजेज पेपर वर्क।
पेपर वर्क बढ़ जाता है, ठीक है, आजकल डिजिटल है तो भी आपके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट रीड आउट करने होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट, जिसके बेस पर ही हम एनालिसिस कर सकते हैं. इट ऑफन फ्लोज ऑन inauspicious stability in business matter while such stability is not noticed. कि हम बात करें तो कभी कभी हमारे सामने स्टेबिलिटी होती है, जैसे कि दिखने में तो है लेकिन वाकई में उसने काम नहीं किया, केवल पेपर वर्क हुआ है, ठीक है. ऐसे केस में स्टेबिलिटी को नोटिस नहीं किया जा सकता. दिस सिस्टम अज्यूम्स दैट ऑल द वर्क इज बीइंग डन प्रॉपर्ली इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेप्शन. दिस गिव फॉल्स सिक्योरिटी टू मैनेजमेंट. हम ये मानकर चलते हैं कि एम्प्लॉय ने जो रिपोर्ट दी है वो एकदम एक्यूरेट है, सही है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप लोग समझिए इस चीज़ को कि अगर ऐसा हुआ कि एम्प्लॉय ने काम नहीं किया और फॉल्स रिपोर्ट दे दी तो फिर होगा ये कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. मैनेजमेंट को फॉल्स सिक्योरिटी मिलेगी, मैनेजमेंट सोचेगा हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा. दिस सिस्टम डजंट प्रॉपरली मेजर मैनी कंपोनेंट्स सच एज ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को आप मेजर नहीं कर सकते एमबीई के अंदर. इज इट क्लियर? सो दिस इज द टेक्निक एमबीई. आज की क्लास में हमने पूरा एमबीई कंप्लीट कर लिया है. स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप. थैंक यू स्टूडेंट्स.